ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुताफलकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome everyone for this weekly Sunday session. तो आज हम भगवान का जो प्रेम है उसका दूसरा साइड देखते हैं। So whenever we actually want to discuss about the affection, love and the protection of the Lord, we usually experience it in the form of our life is saved, our problems are removed, the wealth is been provided, and the diseases have been removed. So this is the usual way the common people experience the protection of the Lord. And whereas the devotees, they experience the protection or the nourishment from the Lord in two ways. One, through the intelligent instructions which are given by the Lord, and the other is through his direct reciprocation or through his devotees reciprocation, how they increase the devotion of a devotee. So इस दो तरीका से हम देखते हैं। और जब गुरु भी जब हम बात करते हैं तो गुरु एक्चुअली क्या करते हैं, भगवान का जो ज्ञान है वो हमको देते हैं। इसका मतलब भगवान से संबंध कैसे एक्चुअली रख सकते हैं। So what is our sambandha gyan, what is abhidheya, and what is prayojan? These are the three steps of knowledge what a practicing devotee shall have. So the sambandha gyan का मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, या परम सत्य जो बोलते हैं वो कौन है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, और हमारे दोनों के बीच में what is the अभिधेय, उसको कैसे एक्चुअली हम वो दासत्व भाव को लेके आना है, वो भक्ति जो है डिवोशनल सर्विस करके श्रील प्रभुपाद उसको भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं।
Previous to Srila Prabhupada, many of the acharyas have commented bhakti as devotion. But Srila Prabhupada is one such big acharya who has translated bhakti as devotional service. मतलब active form में भगवान का जब हम सेवा करते हैं उसको भक्ति कहा गया है. Indeed, उसका आनंद जो है वो कई गुना ज्यादा है. तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद उसको इतना सरलता से प्रैक्टिकली हमारे लिए वो ट्रांसलेट किया है. So when we understand the Guru, when he gives this three forms, after Abhidheya it comes Prayojan. Prayojan matlab, how do we want to serve the Lord, in which way we want to serve the Lord. उस वे को हम जब सिद्ध प्राप्त करते हैं या सिद्ध प्राप्त करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, that is our प्रयोजन. So in this three ways, the Guru or Krishna gives us the instructions. So one such beautiful piece of literature and the instruction what he has given to people in general is in the form of Bhagavad Gita. भगवद गीता के माध्यम से हमको क्या करना चाहिए. भगवान के हृदय अगर जाना है तो दो तरीका है. एक, खुद भगवान से पूछिए. दूसरा, भगवान को जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भगवान को अच्छे तरीके से बहुत हद तक समझ सकते हैं, उनसे सुनेंगे. So then we can understand what Lord wants us to do. So one of the very beautiful ways to understand is through his scriptures. That is Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो भगवद गीता में instructions देते हुए he is actually caring for Arjuna. जो कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी को अगर एक क्लास झाड़ दिया या क्लास दे दिया, तो the other person may not feel that क्या हो गया आज, तो प्रभु जी मुझे इतना क्लास दे रहे. So one may not directly feel the care or the nourishment, but ideally when Krishna, when he was speaking to Arjuna, through his intellectual philosophical treatise, इतना सिद्धांत बोलते बोलते सरल भाषा में अर्जुन से बात करते करते, he is actually caring for Arjuna. He wants to protect Arjuna. He wants to give highest to Arjuna. All these beautiful emotions are actually being transferred to Arjuna. तो भगवद गीता में जब अर्जुन सोच रहे थे कि मुझे अभी युद्ध करना है या छोड़ना है, तो उस स्तर से लेके जाते जाते then his curiosity was increased that what exactly is correct. क्योंकि आप तो बोल रहे तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कि आप कर्म कीजिए, लेकिन कर्म का रिजल्ट जो है उसके ऊपर आप आशा मत रखिए. डोंट एक्सपेक्ट हैप्पीनेस, डोंट एक्सपेक्ट टू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन. ये तो बहुत कठिन है. आप पूरा परिश्रम ही हम इसलिए करते हैं कि जो आखिरी में जो रिजल्ट आता है 30 डेज काम करने के बाद जो बैंक अकाउंट में जो आता है, उससे खुशी पाने के लिए हम 30 डेज काम करते हैं. बट नो, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स करके भगवान बता रहे. तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट. तो ठीक है, बट इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड which is really better, because I also see there are many rishis who leave everything, they enter into the forest and they perform spirituality. So aren't they greater, or are those only people who just reside within their stipulated duties? उनका जो प्रोफेशनल ड्यूटीज करते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम में रहते हैं, और उसके साथ साथ में ये जो कर्मयोग करते हैं, तो वो लोग अगर ग्रेट है तो ये लोग ग्रेट नहीं है क्या? क्योंकि कृष्णा आल्सो मेंशंस इन 5th chapter that the people who
परफॉर्म देयर ड्यूटीज बट आर नॉट अटैच्ड आर बेटर करके बताते हैं। सो अभी बेटर बोल रहे हैं तो इज इट बेटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो हमको समझना है। तो तीसरी चौथी अध्याय पांचवी अध्याय तक हमको पता चलता है कि कर्मयोग जो है आप कर्म ही कीजिए लेकिन डोंट अटैच टू द रिजल्ट्स, इज बेटर देन living and sitting in solitude in the forest and meditating on the sense objects। थर्ड चैप्टर 6 या 7th वर्स में बताते हैं कि पूरा छोड़ छाड़ के जंगल में बैठे लेकिन उधर जाके इंद्रिय वस्तुओं के बारे में मनन कर रहा है तो उनको मिथ्याचारी कहा जाते हैं। मिथ्याचारी मतलब जो वो नहीं है, मिथ्या मतलब असत्य है। So one is trying to show oneself what one is not. So he is called as a cheater or a mithyachari or a bluffer, ऐसे करके। So better than that person is a person who very sincerely performs his duties, but he is not attached with the sense objects. इंद्रिय वस्तुओं से आसक्ति नहीं है। So that person is better. So क्यों बता रहे भगवान ऐसे? क्योंकि in terms of easiness to follow or to practice, and for majority of the people this process is better, but doesn't mean that is the absolute best or better। क्योंकि अभी 6th चैप्टर में भगवान खुद दो स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। वन, इट इज कॉल्ड एज योगा रूढ़ा and the other is called as yoga ruruksha। So yoga ruruksha means it's a beginner stage, and the yoga ruda is the advanced stage, if I'm not swapping here and there। तो छठवीं अध्याय में भगवान इनके बारे में बता रहे हैं, ध्यान योग या अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग में अष्ट अंग होते हैं, उसमें से जो 4 जो है वो फर्स्ट 4 है। तो उसके बाद जो 4 है दे आर मच डीपर। So the first 4, that is yama, niyama, asana and pranayam, ये 4 जो चीज है, ये 4 चीज किस लिए करते हैं? So that we can withdraw our senses from external world to the internal world। क्योंकि हम जब भी बाहर चीजों से डील करते रहते हैं, so our senses are getting interacted with the sense objects। जैसे हमारी इंद्रिय वस्तुओं से मिलजुलते हैं, तो वो कभी कभी उधर से चीजों अंदर भी ले लेते हैं। तो अगर अंदर ले लिया, जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज, इफ इट इज अफेक्टेड बाय द वाटर इट इमीडिएटली absorbs the water, and what happens when it absorbs, it gets affected। पहले तो ड्राई स्पॉन्ज था, उसके बाद वेट हो गया तो उसका प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो गए, जैसे पहले था वैसे नहीं थे। तो वैसे ही we sometimes get affected because of external, but when one follows these 4 things, yama niyama and asanas and the pranayama, so slowly हम क्या कर रहे हैं, सारे एक्सटर्नल्स को धीरे धीरे अवॉइड करके वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द इंटरनल वर्ल्ड। उसके बाद प्रत्याहार से लेके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 4 जो अंग है, दे आर मोर टू डू विद द इनर इंजीनियरिंग। अंदर जो है उसके बारे में सोचने का है। सो नाउ व्हेन ए पर्सन gains and spends good amount of time following the first 4 steps, तो अभी वो मेंटल इक्वानिमिटी में आ जाते हैं बहुत हद तक। मतलब वो द्वंद्व में ज्यादा नहीं रहते। ये द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख, लाभ अलाभ, जया अजय में सम रहते हैं। So they are not affected by heat and cold, they are not affected by happiness and distress। तो उनका जो ईसीजी में कर्व देखते हैं ना हॉस्पिटल में, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसा रहता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा हमारे जीवन में हर्षोल्लास हो जाता है, हैप्पीनेस के मोमेंट्स आ जाते हैं, तो वो ग्राफ बहुत ऊपर तक जाके नीचे आ जाता है।
और कभी कभी बहुत दुखी जीवन, अगर दुखी मोमेंट्स आ गए तो तब वो नीचे तक जाके आ जाते हैं। तो ये जो पूरा ऊपर का और नीचे का जो पॉइंट्स है ना, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, और ये एक्सट्रीम डिप्रेशन। तो ये दोनों जो है, ये दोनों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। उनका कैसे रहता है, अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा खुशी भी हुआ तो दे डोंट टेक इट टू सीरियसली, एंड दे डोंट टेक इट दैट इट विल बी ऑलवेज परमानेंट, यही मेरा लाइफ ऐसे ही रहेगा। नो, दे अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट इट इज टेम्पररी। और बहुत दुखी भी होता है, दे आल्सो डोंट गेट अफेक्टेड, डिप्रेस नहीं हो जाते, होपलेस नहीं हो जाते, डिस्टर्ब नहीं हो जाते, तो चलते रहते हैं। तो वैसे वो थोड़ा समत्व का जो लक्षण जब आ जाते हैं तो तब से प्रत्याहार का स्टेज पालन कर सकते हैं। तो तब वो एक जगह जाके एकांत में वो भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। इसमें भी दो चीज है कि ध्यान योग में भगवान दो चीज के बारे में बताते हैं। एक प्रोसेस बताते हैं ध्यान योग कैसे करना है चाहिए करके, और उसके बाद ध्यान किसके ऊपर लगाना चाहिए ये भी बताते हैं। तो कभी कभी बहुत सारे भगवत गीता पढ़ने वाले क्या करते हैं, प्रोसेस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, आप सीधा बैठिए, पीठ सीधा रखिए, और दोनों आंखों का जो दृष्टि है वो भ्रुकुटी के ऊपर लेके आइए और इधर ही कंसंट्रेट कीजिए, ऐसे करके अलग अलग बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में ही भगवान एक सुंदर उदाहरण देते हैं कैसे रहना चाहिए हमारा मन, जैसे ए लैम्प विच इज नॉट वेवरिंग बिकॉज ऑफ द विंड। तो तब कैसे रहता है लैम्प, इट रिमेन्स स्टडी, इट डज नॉट मूव। सो इन दैट वे आवर माइंड शुड बी फिक्स्ड। सो नाउ व्हाट इज कृष्णा एक्सप्लेनिंग, कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, कैसे करना चाहिए करके। एंड बहुत सारे चीज भी बताते हैं किसमें कुशाग्रास के ऊपर बैठना है, ये वो सारे ऐसे करके विधि विधान भी बताते हैं। सो नाउ those who stress majorly on the process, so they actually say you just meditate on some object in the sky. So you meditate on a candle, you meditate on a leaf on the tree, you meditate on a glass on the water. आपको एक ही फायदा मिलने वाला है। And people really do that and they experience a very positive change in their life. Certainly, by following the process, they actually reap benefits. लेकिन कौन सा लाभ उठाते हैं वो, सत्व गुण का शांति जो होता है, बिकॉज मन इधर उधर नहीं जा रहा है, दुख में सुख में ज्यादा विचलित नहीं हो रहा है, एक स्थिर में है, वो सत्व गुण का शांति जो है वो सुख मिलता है। सो इन वन वे दैट इज गुड, from a disturbed state of consciousness, if someone is attaining a peaceful state of consciousness, वो अच्छा है। लेकिन वो किन के लिए अच्छा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो विश्वामित्र मुनि रामायण के पन्नाओं में पहले अरण्य कांड या बाल्य कांड में वर्णन आता है, क्लोज अराउंड 62 या 65 सर्गास में विश्वामित्र मुनि खुद बताते हैं कि उनके जीवन में कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की। तो हम सबको पता है वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया था। वशिष्ठ मुनि जो है वो प्योर ब्राह्मणा थे और ब्रह्म ऋषि भी थे, लेकिन उनके पास अस्त्र का बल नहीं था। लेकिन विश्वामित्र मुनि बड़ा राजा थे और उनके पास अस्त्र का बल था, सेना का बल था। एंड व्हेन ही वेंट टू दिस हेर्मिटेज ऑफ वशिष्ठा, उनके केवल कामधेनु के माध्यम से सारे सेना को, विश्वामित्र मुनि को जो चाहिए वो सब मिल गया था। धन, ऐश्वर्य, भोजन, संतृप्ति सब कामधेनु के वजह से उनको दिया गया था।
लेकिन विश्वामित्र मुनि को लगा वशिष्ठ के पास जो है वो मेरे पास नहीं है और मुझे भी वो चाहिए। तो कामधेनु को लेने के लिए सोच रहे थे। बाद में उनको पता चला कि कामधेनु उनके पास आया, और ये किसके वजह से, वशिष्ठ के पास जो है वो ब्रह्म ऋषि का प्लेटफॉर्म है, पोजीशन है। तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि चाहिए, क्यों, वशिष्ठ है तो मैं भी, मुझे भी चाहिए। तो ऐसे करके तपस्या करने लगे। तो पहले बार जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को लगा शायद ये इंद्र की पदवी के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेनका को भेजा है। तो जैसे ही विश्वामित्र मुनि घोर तपस्या में थे, almost he did close to around 50-60,000 years, many thousands of years he did tapasya, which is not a very easy task. अगर हमको अभी बोलेंगे 4 मिनट, सॉरी 2 मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी 1 मिनट, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, आधा सेकंड, 10 सेकंड भी हम फोकस्डली हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, बड़ी बात है। But those personalities are so exalted that they are able to meditate it for so long years. तो जब ध्यान कर रहे थे तो मेनका आई। मेनका के जो पैर के जो पायल का साउंड सुन के immediately विश्वामित्र मुनि got agitated, and then upon the request of Menaka, Vishwamitra Muni agreed to give her a child. तो तब विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ कई टाइम बिताते बिताते एक समय उनको ऐसे याद आया कि मैं जिसके लिए एक्चुअली आया, किसके लिए आया, वो तपस शक्ति पाने के लिए, और वशिष्ठ जैसे थे वैसे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए मैं संकल्प लेके आया। लेकिन इधर मेनका के कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ा आतंक बन गया है। So this lust is one aspect which become or can potentially become a obstacle in the life of a devotee. तो ये सारे चीज सोच के I have lost my time. So now I need to again take my संकल्प, डिटर्मिनेशन से फिर से मैं तपस्या करूंगा करके, फिर से स्त्री संग छोड़ के, फिर से जंगल में बैठ के, फिर से again he was meditating. And now again Indra thought, he's again trying, probably now I should send one more. तो तब उन्होंने दूसरा जो अप्सरा थी उनके स्वर्ग में, वो थी रंबा। सो सेकेंड टाइम इंद्रा हैज सेंट रंबा। तो रंबा जाके जैसे ही उनके पायल के साउंड सुने, इमीडिएटली अभी मन में पूरा प्रीवियस इंप्रेशंस है कि दैट I have already been conquered by the lust and I have wasted a lot of time, and because of this I became so far or delayed my journey to reach my destination or my goal. Then he thought, this person has come to spoil my determination. So he became angry. First time he fell prey by Menaka in the form of lust. Now he has become prey in the form of anger. बताते हैं अगर किसी को तुरंत उनका तपस्या बल जो है वो खोना चाहिए तो गुस्सा होंगे ना, तुरंत तुरंत उनका तपस्या बल हो जाता है। So just because of the anger he lost his tapasya bal significantly. So though he did not associate with her, did not spend time with her, but it is the krodha, anger is another form of lust. तो लस्ट के दो अंग होते हैं, एक अफेक्शन होता है, दूसरा अवर्शन होता है। तो अवर्शन मतलब तिरस्कृत, नकारना, तो अफेक्शन मतलब अटैचमेंट, स्नेह भाव पैदा होना। तो पहले क्या हुआ, पहले जब मेनका आई थी तो अफेक्शन, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ लस्ट,
And here it is aversion. And when that aversion was displayed towards a particular person, then it came out in the form of anger. क्रोध के रूप में आ गया. So now again, he practiced it for again long years, and then he attained the stage of Brahma Rishi. तो इस ग्रेट पर्सनालिटी विश्वामित्र मुनि जो है वो बहुत बड़े ऋषि थे. तो जैसे हर एक साधका के लाइफ में कभी कभी डिफिकल्टीज आती है, एंड देन एट हिज एंड ही रीचेस हिज फाइनल गोल, वैसे ही विश्वामित्र मुनि अपने जीवन से हम सबको सिखा रहे that even if I don't conquer the lower natures and prematurely if I come and do tapasya, then I have the problem of becoming a victim of all these things. तो मन को संयम रख के तब एक्चुअली उधर जब जाते हैं तो देन इट इज अ सेफर साइड, देन इट इज सेफ. तो अलग अलग माइंड को ना अलग अलग चैलेंजेस है, तो उनके लिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन हो गया. तो दूसरा, रामायण में सीता मैया राम जी को एक स्टोरी सुनाती है, क्योंकि राम जी हमेशा उनके बाण और धनुष लेके घूमते. तो ही इज वेयरिंग द फॉर्म ऑफ ए ट्री बार्क. पेड़ का जो चमड़ी जो है उसको अपने वस्त्र जैसे पहन के वो जंगल में घूम रहे, और हाथ में तो क्षत्रिय जैसे धनुष और बाण लेके घूम रहे. तो सीता मैया एक बार ऐसे एक कथा सुनाती है राम जी को. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल स्टोरी है. एक पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम दूसरी दृष्टि से नहीं लेना चाहिए. तो इन अफेक्शन विथ ग्रेट ममता, सीता मैया इज नरेटिंग दिस स्टोरी. एक बार बोलती है, एक सेज है, तो वो तपस्या कर रहे थे और इंद्र को लगा, ये स्टोरी कॉमन है, कभी भी कुछ भी सेज जब तपस्या करते हैं तो इंद्र को थोड़े इनसिक्योर फील हो जाते हैं. तो इंद्र को लगा ये मेरा पदवी के लिए तपस्या कर रहा है. तो ये जो पदवी जब आ जाती है ना, पोस्ट पोजीशन या फैसिलिटीज, तो तब नेचुरली इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है. अगर कुछ उतना ज्यादा है ही नहीं है तो तब खोना क्या है, तो इसलिए उसको उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी नहीं रहता है. लेकिन अगर हमारे लॉकर में 2 गोल्ड बिस्किट है, वो भी 100 ग्राम के है, तो कितना ज्यादा टेंशन आ जाता है. अगर घर छोड़ के जाएंगे, अरे कोई चोर आके लेके चला गया तो. सो सच काइंड ऑफ डिफरेंट insecurity feelings would be there, either because of having a post, wealth, or beauty, or intelligence. So इन सारे चीजों के वजह से one can actually have the insecurity feeling, what if I lose this करके. तो इंद्र के पास पोस्ट था, and now he was thinking, ये सेज तो इतना सेल्फ कंट्रोल्ड है that probably I don't think I can disturb him with wealth nor with women, because he's so self-controlled, he will not be disturbed by both of them. So what should I do? तो वो एक साधारण ट्रैवलर जैसे एक सोल्जर के रूप में जाके उन्होंने बोला, मेरे पास एक अच्छा सा स्वॉर्ड है, मैं बस वो एक छोटा जगह पे जाके फिर से वापस आके मैं आपसे ये तलवार ले लूंगा, तब तक आप इसको आपके पास रखिए. So the sage thought, oh, there is no harm in this, so let me actually keep this. So he kept it beside and he started continuing his meditation. And one fine day he saw the beautiful sword that is so beautifully carved, the sheath in which it is actually kept. So वो स्वॉर्ड को रखने के लिए एक रहता है ना शीट मेन, तो उसके अंदर that itself is so beautiful. उन्होंने एक दिन उसको निकाला, उसको पूरा तलवार को निकाला, and it was so sharp, so shining. The design of the sword is so beautiful. उसका जो handle है, it is actually decorated so nicely. So he thought, this is so nice. So can I use this to cut the grass so that grass can be used for
मैं आसन। तो इस बार बाहर गए, उसको लिया, ही यूज इट दैट फॉर कटिंग द ग्रास, और वो लेके आके मेडिटेशन करने लगे और कर रहे थे कुछ समय में। और उसके बाद आंख ओपन किया और देखे ये ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल इट इज, सो आई शुड यूज दिस टुमारो टू कट द वुड। तो पहले दूसरे माध्यम से उनको वुड ले रहे थे, तो अभी he is using the very same word to cut the wood so that he can prepare food. And slowly, after some time, he continued his meditation. And again, one fine day, he used that sword to actually chop the lata, trees, small trees, I see, to clear his path. And then again, after some time, again he thought this word is good. He started using it against the wild animals. So ideally, a person who is trying to do meditation, he tries to depend more on the Paramatma within, and he tries to maintain the non-violence or peaceful at heart. So abhi dhire dhire he started showing violence towards the wild animals, and then slowly it entered towards the innocent animals also. तो ऐसे धीरे धीरे उनके हृदय में शांत, काइंडनेस, ये सारे चीज से slowly he started developing violence and agitated and superiority over the other living entities. ये सारे चीज पैदा किया. When he started developing such kind of impurities within their heart, this soldier came. And तब तक the sage started using this in his ear और आगे पीछे, and he started, उनको ऐसा लग गया कि this word was his eternal companion. We got so much attracted, and by then the internal purity was slowly degraded. And Indra thought, I have sufficiently done my job, and now I will come and I'll take this word back to myself. तो उन्होंने आए और खुद वो एक वर्ड तलवार लेके चले गए. So many a times, to distract mind, lust may not be the thing, and anger may not be the thing, but sometimes it comes in the form of a disguise of a good friend or a non-harming object, but later it turns out to be a very demonic force who can destroy our devotion from us. तो कभी कभी लगता है कि ये तो कुछ एक्चुअली मुझे बाधा ही नहीं करेंगे, ये हार्मलेस है. तो something similar actually happened during the period of 1960s. During the period of 1960s, television actually entered. So the television people, जो manufacturers थे, they thought इंडिया में इतना जनाभा है, इतने सारे लोग को एक्चुअली टीवी जाएगा तो कितना एक्चुअली पैसा कमा सकते हैं. लेकिन ये टीवी खरीदने के शौक ही नहीं है इनके पास. लेकिन टीवी कैसे इनके हाथ में, इनके घर पे एक्चुअली देना चाहिए. सो दे थॉट, लेट मी शो रामायण, महाभारत, कृष्ण. पहले रामायण का चालू किया. तो जैसे जैसे रामायण आया, घर में टीवी आ गया. तो जैसे रामायण घर में टीवी में चल रहा था, सारे विलेज के सारे लोग उधर आ जाते थे और सब एक ही घर पे, एक ही छत के नीचे बैठ कर देखते थे. एंड देन हो गया क्या है, नेबर्स प्राइड, सॉरी, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी करके एक टेलीविजन का कैप्शन था. क्या बोलता है वो, ओनर्स प्राइड, ये टीवी मेरे पास है करके मेरा गर्व है, वो दूसरों का असूया बनता है, नेबर्स एनवी. तो धीरे धीरे इनके पास क्यों, हमारे पास भी रह सकता है. सो स्लोली television entered into the lives of the common people with the banner of रामायण. टेलीविजन लेके आया तो क्या प्रॉब्लम क्या है,
कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. And then Ramayana entered, Mahabharata entered, and Krishna entered, Om Namah Shivaya entered, Jai Hanuman entered, and then slowly Shaktiman entered, TV entered, Dance Baby Dance entered, and then so many other crazy movies entered, and whatever is not recommended, everything entered. So earlier it entered like this non-harming sword and came out to be a sharp-edged, harmful sword, which distracted us from our Lord Ram, our Lord Krishna. और ऐसे ही चीज 1994 से लेके 2000 के बीच में हुआ था. 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, तो इसका मतलब फ्री ट्रेड था. तो कोई भी इंडिया में उनके सारे सामान लेके बेच सकते हैं, एंड हम भी उनके जगह जाके हम अपना बेच सकते हैं विदाउट हैविंग एनी टैरिफ्स. अभी दुनिया में बहुत सारे टैरिफ्स का बहुत चल रहा है ना, तो उस समय पे फ्री ट्रेड डील था. So during the period of 94 to 2000, India got 6 Miss Worlds. क्यों? क्योंकि एक वुमन ब्यूटीफुल अगर करके पब्लिसाइज करेंगे, then the cosmetics, what she wears, how she actually presents herself as a beautiful. So through that medium, the cosmetic industry flourished. It entered like a simple talcum powder, and then small face cream, lotion, shampoo, sunscreens, and whatnot all. So now in India, the cosmetic industry is multi-billion-dollar industry. तो वो 6 साल में ही उन्होंने 6 मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडिया से ही दिया. क्यों? Because India is a big population, and if at all, if I have to sell my cosmetics to this nation, I have to give. और वो 6 साल के बाद they were looking to actually sell their products in different nation, so they gave the Miss Worlds to different nation. So in that way, now everyone is so much beauty conscious. पहले it was only restricted to females, but then why it is only fair and lovely? Why can't it be fair and handsome? ऐसे करके that kind of inner desire to look beautiful was there in everyone, even previously also. But external situations जब फैन करते हैं ना, तो तब अंदर बाहर के चीजों जब चिंगारी देते हैं, तो तब आग और बढ़ जाती है. तो दे ऑल्सो हैंकर मोर, अरे मैं भी बनना चाहिए. सो इन दैट वे द मेल प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो क्रिएटेड. क्यों? क्योंकि तब तक फीमेल प्रोडक्ट्स का सैचुरेशन आ गया, तो तब लगा 50% ये लोग है, 50% ये लोग है, तो इनका मार्केट क्यों नहीं छीनना चाहिए. सो इन दैट वे दे स्टार्टेड कॉन्करिंग द माइंडसेट एंड द वीकनेस और द नेचुरल इंद्रिय तृप्ति का जो स्वभाव है उसको वो टैप करते करते आगे बढ़े. So in this way, they have actually conquered a significant distracting elements. और ऐसे ही चीज 2010-11 के बाद इंटरनेट रेवोल्यूशन क्रिएटेड. So the internet previously भी था 2004 से लेके, but it was not so widely given to the masses. तो इस बार it was so widely given to the masses after 2010-11-12 that everyone can afford it with ease. तो हाथ में इंटरनेट आ गया, whatever they want they actually can access through their mobile. पहले लैपटॉप में रहता था तो कम से कम इतना बड़ा स्क्रीन है, कुछ चीज एक्चुअली देखना चाहिए, कुछ मेरे लिए भलाई है, कुछ भलाई नहीं है, ये सारे चीज सोच विचार करके पेरेंट्स बच्चों को देते थे. तो अभी तो हाथ में मोबाइल में आ गया, तो इट इज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड ऑल्सो एंड इट इज वरीसम फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो कि ये चीज मेरा बेटा बेटी को दे रहा हूँ मैं, तो हाउ विल दे यूटिलाइज दिस, बिकॉज एवरीथिंग इज इन देयर हैंड इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, so many things. So in that way, Kali Yuga penetrates into multiple ways and distracts. Just like that sword has distracted this age,
Similarly, these different swords at different times, it comes in different beautiful sheaths and attracts our mind. तो हमको पता ही नहीं चलता है कि किस कारण से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होके चला गया करके. So from all these things, when one actually understands these are the distracting elements, I need to live a regulated life. I need to get away from all this distracted thing. I need to be focused to my devotional service. Then slowly, slowly they get internal. Pratyahara. Pratyahara means avoiding all the external situations. तो उधर से लेके ध्यान तक आगे बढ़ता है. So with this, we will end and we will discuss more how these instructions actually help us in our devotional service. If anyone has any queries, questions, doubts, comments, welcome. Hare Krishna. किसी को कुछ प्रश्न है? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, आई वांटेड हरे. टू आस्क दैट आपने कहा था कि लस्ट के दो फॉर्म होते हैं. एक तो अफेक्शन, एक होता है आवर्जन. तो कई बार क्या है, हम अफेक्शन से बचने के लिए आवर्जन तो करते ही नहीं, अवॉइड करते हैं, आवर्जन करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. तो इज इट ओके? No, it is not okay. वही हम बता रहे कि कभी कभी क्या है, अवर्शन के वजह से, अवर्शन मतलब इसमें दो प्रकार के होते हैं. हम अगर कोई एक समझे कि एक स्त्री के वजह से हमको आकर्षण हो गया, तो अगर आकर्षण है तो उसको नहीं, हम समझाते हैं कि मन में नहीं, आकर्षण नहीं होना चाहिए. तो क्या करते हैं, उस स्त्री का भी ऐसे ही, उनका तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन उस स्त्री कुछ भी सेवा के लिए अगर भी आए या कुछ नॉर्मल भी बात किया, तो इमीडिएटली वी शो द एक्सप्रेशन ऑफ अवर्शन. तो उसमें से एंगर करना या तिरस्कृत भाव करना या नीच भाव जो है, वो अगर जब आ जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो स्लोली स्लोली थ्रू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र and through practicing and through reading shastras and taking the association of the devotees, जैसे जैसे मन थोड़ा शुद्धि होता रहता है, we will not be going using the harsh words towards the others. Very beautifully, His Holiness Radhanath Swami Maharaj tells how should we interact with the mothers, that is Matajis or the other genders, that we should interact in such a way that we should seek blessings from them. उनसे हमको आशीर्वाद चाहिए करके उस तरीके से हम उनसे जब व्यवहार करते हैं, so then naturally when we want blessings, we naturally seek blessings from whom we want to consider themselves as seniors and whom we want to do service to them, and in return we want blessings from them. उनको सेवा करके उनसे आशीर्वाद पाना. तो सहजता वो सत्व गुण का लक्षण पैदा करता है. हम उनको माता के रूप में हम देखना का प्रयास कर सकते हैं इस दृष्टि से. So in that way, whenever we want, we need to always approach them in a mood that how can I actually serve so that I can get the blessings, so that they can never be affected by the attachment and aversion both. ओके प्रभु जी, थैंक यू. कृष्ण प्रभु जी, Hare दंडवत Krishna. प्रणाम. Dandavat pranam Nirvan Prabhu. सूरदास जी ने अपनी आंखों में को नुकसान, मतलब अंधा कर लेता अपने आप को, क्योंकि उनके मन में शायद किसी स्त्री को देख के पूछा रहा है. तो उन्होंने कहा, ये आंखें मेरी, मतलब इसकी वजह से मैंने देखा है कभी सारा, तो उन्होंने ऐसे कर लिया. क्या ये ठीक तरीका है लक्ष्य लगाने के पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, शायद आप स्पीकर फोन ईयरफोन में होंगे. हाँ, मैं ये तो मैं आपके कहता बैकग्राउंड का जैसे, आवाज. हाँ, जैसे मैं कहता कि वो सूरदास जी है ना,
सूरदास जी ने अपनी आंखों को अंधा कर लिया था अपने आप को, क्योंकि शायद उन्होंने किसी स्त्री को देखा था, तो उनको लगा कि आंखों की वजह से मेरे मन में बुरा विचार आया, तो अपनी लस्ट को दबाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें ही खोल दी। तो क्या ये ठीक है तरीका? हम्म। क्या इससे सूरदास जी, सक्सेस पा सकता है अगर जो आदमी? एक्चुअली सूरदास जी का भी विश्वास जो था, केवल वो आंख जो है, उस दृष्टि को, आंख को एक्चुअली नुकसान पहुंचा के काम से विजय प्राप्ति कर सकते हैं क्या करके, वो भी उनका, आई डोंट थिंक ही हैज दैट थिंग इन हिज माइंड, बट एज ए मैटर टू एक्चुअली डिसिप्लिन वो उन्होंने किया होगा। बट हर एक जो अच्छे भक्त है, एडवांस डिवोटीज है, उनका निश्चय हमेशा एक ही है, दैट इज ओनली बाय द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन, भक्ति योग करने के माध्यम से ही अंदर का जो इम्प्योरिटीज है वो चला जाएगा। सो एक्सटर्नली उसको एक हद तक कंट्रोल करने के लिए उनका भी साधना के स्तर पे उन्होंने एक समय में वो एक स्टेप लिए होंगे, बट it doesn't mean that he always has the conviction that only just external senses को डैमेज करने से इंटरनल हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा करके। नो, वो नहीं है। हार्ट ऑलवेज गेट्स प्यूरिफाइड बाय chanting द हरे कृष्ण महामंत्र। ओके इसलिए प्रभु। गृहे ठाको, वने ठाको, सदा हरि बोले ठाको, ऐसे करके भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। गृहे ठाको मतलब या आप गृह में रहिए, या वने ठाको मतलब वन में रहिए, लेकिन क्या करना है? सदा हरि भोले ठाको, हमेशा भगवान हरि का नाम लीजिए। तो ठीक है दैट इज प्रभु। द ओनली सॉल्यूशन। सही है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Okay, if there are no questions, then we will meet again next week. Hare Krishna. Srila Prabhupada.